ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں اپنی دوست کے ساتھ پکڑن پکڑائی کھیل رہی تھی کہ اچانک میرا کزن وہاں پر آ گیا اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، تم چھوٹی نہیں ہو جو اس طرح سے بھاگ رہی ہو، کچھ شرم کر لو، اب تم بڑی ہو چکی ہو، گاؤں والے دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ اس کی بات سن کر میں نے برا سا منہ بنایا اور اسے کہنے لگی، ابھی چھوٹی ہی تو ہوں، فی الحال میری عمر ہی کیا ہے، صرف اور صرف 16 سال۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ سے بھاگنے لگی کہ اس نے مجھے ڈانٹا اور گھر چلنے کے لیے کہا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ گھر کی طرف چلنے لگی۔ میں دل ہی دل میں اسے گالیاں دے رہی تھی۔ پھر میں نے جلدی سے توبہ کی کیونکہ امی نے مجھے سمجھایا ہوا تھا کہ اپنے ہونے والے شوہر کو برا بھلا نہیں کہتے۔ میں نے دوبارہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو اب تھوڑا نارمل ہو چکا تھا، یعنی اس کا غصہ اتر چکا تھا۔ وہ نہ صرف میرا کزن تھا بلکہ میرا ہونے والا شوہر بھی تھا۔ شروع میں جب مجھے اپنے اور اس کے رشتے کے بارے میں پتہ چلا تھا تب میں نے بہت واویلا مچایا تھا کہ میں اسے شادی نہیں کروں گی کیونکہ وہ مجھ سے 7 سال بڑا ہے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ نہ جانے کب مجھے اس سے محبت ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہ چلا، اور پھر بعد میں جا کے مجھے اس چیز کا بھی احساس ہو گیا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور بہت ہی خیال رکھنے والا انسان ہے۔ اور پھر کیا تھا، میری محبت پروان چڑھتی گئی اور اب مجھے اس سے عشق ہو گیا تھا۔ اس کے بغیر میں ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتی تھی، اور جس دن وہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا اس دن جان پوچھ کر میں کوئی ایسی حرکت کر دیتی تھی کہ وہ مجھے ڈانٹ دیتا تھا، لیکن اس کی یہ ڈانٹ بھی مجھے پیار ہی لگتا تھا۔ ابھی بھی میں جان پوچھ کر ہی اس کے گھر کے سامنے کھیل رہی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ تھوڑی ہی دیر بعد باہر نکل آئے گا اور مجھے دوبارہ گھر لے جائے گا۔ اس بہانے میں اس سے بات بھی کر لوں گی۔ چونکہ احمد بہت سمجھدار تھا، اسی وجہ سے وہ مجھے زیادہ فری نہیں ہونے دیتا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ ابھی میرا ذہن کچا ہے اور میری عمر بھی چھوٹی ہے، لہٰذا اگر میں ان چیزوں میں پڑ گئی تو اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤں گی۔ اور اس دوران میرا اسکول بھی چھوٹنے کا خطرہ تھا کیونکہ بڑی مشکل سے میں میٹرک میں پہنچی تھی، اور اگر ابھی سے ہی عشق کے عذابوں میں پڑ جاتی تو اپنی پڑھائی کی طرف بھی دھیان نہیں دے پاتی، جبکہ وہ 16 جماعتیں پاس تھا۔ وہ میری سوچ سے بھی زیادہ حسین تھا اور ہمارے خاندان کا سب سے ذہین لڑکا بھی تھا۔ خاندان کی تمام عورتیں یہی چاہتی تھیں کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ احمد سے طے کریں، لیکن احمد کا دل تھا جو مجھ پر آ گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اتنے زیادہ خوبصورت لڑکیوں کے رشتے ہونے کے باوجود بھی احمد نے مجھ سے ہی شادی کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس بات کا احساس بھی مجھے ابھی کچھ مہینے پہلے ہی ہوا تھا۔ میں شکر ادا کرنے لگی کہ میں نے زیادہ واویلا نہیں مچایا، ورنہ اتنا اچھا رشتہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے نکال دیتی۔ ہمارے گھر سے تھوڑے ہی دور ایک برگد کا پیڑ تھا۔ اس پیڑ کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں پر جو بھی شادی شدہ عورت بیٹھتی ہے وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ میں نے وہاں سے گزرتے ہوئے احمد سے پوچھا، کیا یہ سب کچھ سچ ہے؟ تو میری بات سن کر احمد نے بڑی تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور پھر مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ تم کبھی مر کر بھی اس طرف نہیں آنا، کیونکہ یہاں پر بہت ہی عجیب و غریب چیزیں بھی رہتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہارے ساتھ چمٹ جائے، پہلے ہی تمہارا دماغ کام نہیں کرتا، پھر اور ہی پاگل ہو جاؤ گی۔ اس کی بات سن کر میں نے برا سا منہ بنایا اور اس سے کہنے لگی کہ جتنی سمجھدار میں ہوں تمہاری سوچ ہے۔ احمد بھی میری بات سن کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، مجھے تمہاری یہ مذاق کرنے کی عادت بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ مجھے صاف صاف چڑھا رہا تھا اور میں چڑ بھی گئی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد میں اس سے آگے آگے چل رہی تھی، جبکہ وہ مجھے روک رہا تھا اور مجھ سے معذرت کر رہا تھا کہ غلطی ہو گئی ہے، آئندہ تنگ نہیں کروں گا۔ لیکن اب میرا موڈ بری طرح سے خراب ہو گیا تھا، لہٰذا اس کے بغیر ہی میں تیزی سے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ میرا سوجا ہوا منہ دیکھ کر امی مجھ سے پوچھنے لگیں کہ کیا ہو گیا ہے، کس سے لڑائی کر کے آ رہی ہے؟
मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा और कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद अहमद भी घर के अंदर दाखिल हुआ तो अम्मी उसे कहने लगी, लगता है फिर उसके मजाज में कोई फ़र्क आ गया है, इसी वजह से बग़ैर बात ही कि ये कमरे में अंदर चली गई है। और फिर वो जल्दी से अहमद से पूछने लगी कि बेटा, उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, मैं अभी और इसी वक्त उसका दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। क्योंकि मेरे कमरे की खिड़की खुली हुई थी, इसी वजह से मुझे उनकी आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और सोचने लगी कि ये कैसी माँ है जो अपनी बेटी को एक गैर इंसान के सामने यूं जलील कर रही है। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं जानती थी कि अम्मी मुझसे भी ज़्यादा अहमद पर यकीन रखती हैं। वो जानती हैं कि मैं कम अकल हूँ और नासमझ हूँ, इसी वजह से वो मेरी बातों को भी किसी खातिर में नहीं लाती और इसी बात पर यकीन करती हैं जो कि अहमद उन्हें कहता है। अहमद काफ़ी देर तक बाहर ही बैठा रहा। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसके सामने जाकर बैठूं और उसे देखती रहूं, लेकिन अब चूंकि मैं उससे नाराज़ हो चुकी थी, लिहाजा अब मैंने अपने आप पर बहुत ही मुश्किल से काबू पाया हुआ था। मुझे लगा था कि अहमद मेरे कमरे में आएगा और मुझे मनाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। अहमद वहीं से घर वापस चला गया, जिसकी वजह से मेरे गुस्से में मज़ीद इजाफा हो गया। अब मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, दोबारा कभी इस शख्स से बात नहीं करूँगी और ना ही इस शख्स से मिलूँगी। लेकिन मैं जानती थी कि ये मेरा फ़ैसला भी सिर्फ चंद लम्हों के लिए ही है, क्योंकि शाम के वक्त अहमद दोबारा मेरे घर आया और मुझे कहने लगा, चलो नहर के नारे चलते हैं, मुझे तुम्हें कुछ देना है। उसकी बात सुनकर मैं नखरे दिखाना चाहती थी, लेकिन मैं नखरे ना दिखा पाई और खुशी खुशी चलते हुए कहने लगी, ठीक है, तुम यहीं पर रुको, मैं चादर ओढ़ कर आती हूँ। मेरी ये हरकत देखकर अहमद मुस्कुराने लगा और कहने लगा, तुम मुझसे नाराज़ नहीं थी? उसकी बात सुनकर चंद लम्हे मैं खामोश हो गई और उसके चेहरे की तरफ देखने लगी, जो संजीदगी से यह सवाल पूछ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। मैंने भी शरारती अंदाज में जवाब दिया और उसे कहा कि मैं वो चीज़ लेने के बाद तुमसे दोबारा नाराज़ हो जाऊंगी, तुम उसकी फ़िक्र मत करो। अब कि अहमद ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसने लगा। वो हंसते हुए बहुत ही खूबसूरत लगता था। मैं बहुत गौर से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। उसने अचानक ही मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाई। मैं जल्दी से होश की दुनिया में आई और फिर उसे कहा कि बस थोड़ी देर सब्र करो, मैं आती हूँ। और थोड़ी ही देर बाद मैं चादर ओढ़कर अहमद के साथ नदी किनारे बैठी हुई थी। अहमद मुझे बता रहा था कि उसने आर्मी का टेस्ट दिया था और अब वो कैप्टन के ओहदे पर फाइज होने जा रहा है। अहमद की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरी सारी मुरादें पूरी हो गई हों, क्योंकि मैं हमेशा से ही चाहती थी कि मेरा होने वाला शौहर आर्मी में हो। अब जबकि अहमद आर्मी में भर्ती होने जा रहा था तो मेरी खुशी और जोश का कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन अब उसके साथ साथ मुझे दुख भी हो रहा था, क्योंकि वो मुझसे दूर होने जा रहा था। अभी उसकी पहले 6 महीने ट्रेनिंग होनी थी और इन 6 महीनों में मैं ना तो अहमद को देख सकती थी और ना ही उससे बात कर सकती थी। मैं एकदम ही उदास हो गई। मुझे देखकर वो तसल्ली देने लगा और कहने लगा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, बल्कि तुम्हें रोज़ रात को कॉल किया करूंगा। बिलाशुबा वो कॉल सिर्फ 2 या 3 मिनट की होगी, लेकिन मैं तुम्हें याद रखूंगा। और फिर जैसे ही मेरी ट्रेनिंग ख़त्म होगी तो मैं अम्मी को कह दूंगा कि अब वो हमारा निकाह कर दें। पहले मैं सोच रहा था कि तुम छोटी हो, लिहाजा तुम्हें थोड़ा टाइम दूं, लेकिन अब मैंने फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि अब मैं खुद भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे बारे में ये इतने नेक जज्बात रखता है। अब तो मेरी मोहब्बत में मज़ीद इजाफा हो गया था और फिर काफ़ी देर तक हम वहाँ पर बैठे बातें करते रहे। इस दौरान मुझे यूं लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं बार बार अपने आगे पीछे देखती, लेकिन कोई भी मुझे नज़र नहीं आता था। अहमद ने जो मुझे ये सब करते देखा तो मुझसे पूछने लगा, क्या हो गया है, तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है?
मैंने उसे बताया कि मुझे यूं लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा हो। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वहम है, यहाँ पर हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है। और फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी डब्बी निकाली और मुझे कहा कि इसे खोलो। जैसे ही मैंने डब्बी खोली, अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सोने की अंगूठी थी। उसने वो सोने की अंगूठी निकाली और मेरी उंगली में पहना दी और मुझे कहने लगा कि ये मेरी निशानी है जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहनी चाहिए, इसे कभी भी अपनी उंगली से मत निकालना। उसकी बात सुनकर मैंने तेजी से हाँ में सर हिलाया और फिर वहां पर थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोग घर वापस चले गए। उस दिन मेरा अहमद के साथ आखिरी दिन था, क्योंकि अगले दिन ही उसने ट्रेनिंग के लिए निकल जाना था। मैंने अहमद को कहा था कि जब वो सुबह जाए तब वो मेरे घर का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाए, क्योंकि मैंने आखिरी बार उससे मिलना है। वो पूरी रात मैंने जागते हुए गुजारी, लेकिन ऐन सुबह के वक्त जब अहमद ने मुझसे मिलने के लिए आना था तब अचानक ही मेरी आंख लग गई। दिन के वक्त तकरीबन मेरी आंख 9 बजे खुली। मैंने देखा कि सूरज कमरे के अंदर दाखिल हो रहा था। अचानक मेरे जहन में अहमद का ख्याल आया। मैं तेज़ी से बाहर निकली। अम्मी मुझे यूं तेज़ी में देखकर हैरान हुई और फिर मुझसे पूछने लगीं क्या हो गया है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो। मैंने उनसे पूछा कि अहमद कहाँ है, क्या वो चला गया है। मेरी बात सुनकर अम्मी कहने लगीं, हाँ वो सुबह तुमसे मिलने के लिए आया था और मैंने तुम्हें जगाया भी था, लेकिन शायद तुम गहरी नींद में थी। फिर उसने मुझे मना कर दिया और कहने लगा कि इसे सोने दीजिए, अब इंशाल्लाह 3 महीनों के बाद ही मुलाकात होगी। अम्मी की बात सुनकर मैंने अपना सर अपने दोनों हाथों में गिरा दिया और अम्मी से शिकायत करते हुए कहने लगी, अम्मी यार ये क्या बात हुई, आपको पता भी था कि मैंने उससे मिलना है, फिर भी आपने ये सब कुछ किया। मुझे यूं नाराज़ देखकर अम्मी ने मुझे तसल्ली दी और कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब करने के लिए मुझे अहमद ने ही कहा था, क्योंकि उसे पता था कि तुम उसे यूं जाता देखकर रोना शुरू हो जाओगी और फिर तुम्हें चुप करवाते करवाते उसे देर हो जाएगी, लिहाजा उसने बेहतर यही समझा कि तुम्हारी रोने की नहुसत लिए बगैर ही यहाँ से चला जाए। अम्मी की बात सुनकर मैंने शिकायती नज़रों से उनकी तरफ देखा। बिलाशुबा वो मेरी बेइज्जती करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी और अभी भी उन्होंने मेरे साथ यही सब कुछ किया था। उसके बाद अम्मी मुझे कहने लगीं, चलो अब जल्दी से उठो और मेरे साथ खाना बनाओ। मैंने अम्मी की तरफ यूं देखा जैसे उन्होंने कोई अनोखी बात कह दी हो। और फिर यही नहीं बल्कि उस दिन अम्मी ने मुझसे सारे घर के काम करवाए। जब मैं कहती कि मैं उन्हें काम नहीं करना, तो वो आगे से मुझे यही जवाब देती कि अब 6 महीनों बाद तुम्हारी शादी होने जा रही है, मैं नहीं चाहती कि तुम ससुराल जाकर मेरा मुंह काला करवाओ या मुझे बेइज्जत करवाओ, लिहाजा बेहतर यही है कि खामोशी के साथ वो सब कुछ करती जाओ जो मैं कह रही हूँ, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अम्मी की बात सुनकर मैं गहरा सांस लेती और दोबारा से काम शुरू कर देती, क्योंकि एक तरफ मुझे ये खुशी भी थी कि अब मैं बहुत जल्द यहाँ से निकलकर अहमद के घर चली जाऊँगी। और कल अहमद ने मुझे एक और बात भी बताई थी जिससे मेरी खुशी में मज़ीद इजाफा हो गया था। वो ये थी कि अहमद को फ़ौरन ही सरकार की तरफ से एक घर मिलना था और अहमद का फ़ैसला ये था कि वो मुझे अपने साथ उस घर में लेकर चला जाएगा, जबकि उसके बाकी घर वाले यहीं पर रहेंगे, यानी मैं और अहमद दोनों वहाँ पर ज़िंदगी गुजारेंगे। दिन तेज़ी से गुजरते चले जा रहे थे। अब मैं अहमद को बहुत ज़्यादा याद करने लगी थी, क्योंकि मुझे उसे देखने की बहुत ज़्यादा आदत हो चुकी थी। सुबह मेरी आंख खुलती थी तो मैं उसे देखने की ख्वाहिश करती थी और फिर उसी ख्वाहिश को पूरे करने के चक्कर में उसके घर की तरफ निकल जाती और फिर रात को सोने से पहले भी उसका चेहरा देखकर सोती थी। और अब जब वो मेरे सामने मौजूद नहीं था तो मुझे हर तरफ खालीपन सा लग रहा था। एक दिन मैं सहन में बैठी डाइजेस्ट पढ़ रही थी, लेकिन मेरा ध्यान उसी की तरफ लगा हुआ था। गुस्से से मैंने डाइजेस्ट का साइड पर रख दिया और चारपाई पर उठ बैठी। क्योंकि मैं सारे काम ख़त्म कर चुकी थी, इसीलिए अम्मी भी खामोशी से बैठी हुई थी। अचानक ही मेरी दोस्त घर के अंदर दाखिल हुई और तेज़ी से मेरे पास आई। वो चेहरे से काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी।
उसको परेशान देखकर मैंने पूछा कि क्या हो गया। तो मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, तुम्हें बताने के लिए मेरे पास एक बात है, तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो। मैंने एक नज़र अम्मी की तरफ देखा और उसे कहा कि पहले अम्मी से इजाज़त तलब करो, क्योंकि अगर मैंने कहा तो ये कभी भी मुझे इजाज़त नहीं देंगी। लिहाजा मेरी दोस्त ने अम्मी के सामने ये बहाना रखा कि उसकी कज़न के घर में मेलाद है और वो मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहती है। मैं जानती थी कि वो झूठ बोलने में बहुत कच्ची है और झूठ बोलते वक्त वो बार बार अपने हाथों को मसलती है, और उसकी इस आदत के बारे में तमाम ख़ानदान वाले अच्छी तरह से जानते थे और अब तो मेरी अम्मी को भी पता चल चुका था। लिहाजा उसने वही सब कुछ किया जिससे अम्मी को अंदाज़ा हो गया कि वो झूठ बोल रही है। अम्मी ने उसे कहा, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसे लेकर जाने की इजाज़त दे देती हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि 2 घंटों के अंदर अंदर तुम लोग मुझे वापस इस घर के अंदर चाहिए हो। अम्मी की बात सुनकर पहले तो उसका चेहरा एकदम ही शर्मिंदगी से स्याह हो गया, फिर वो जल्दी से हाँ में सर हिलाने लगी और कहने लगी, आप फिक्र मत करें, हम बस जल्दी से वापस आ जाएंगे। मुझे लेकर वो तेजी से बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ने लगी। उसको वहां जाते देखा तो मैंने उससे पूछा, क्या हो गया है, उस तरफ क्या करने जा रही हो? उसने कहा कि हम आज एक तजर्बा करेंगे, हम देखेंगे कि इस पेड़ के नीचे बैठने से वाकई कोई औरत हामला होती है या सिर्फ और सिर्फ झूठ है। उसकी बात सुनकर मैंने तेजी से अपना हाथ खींचा और उसे डांटते हुए कहने लगी, फजूल बातें मत करो, अगर तुम मुझे इस काम के लिए लाई हो तो मैं तुम्हें अभी से बता देती हूँ कि मुझे इस काम में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, और अहमद ने भी मुझे मना कर रखा है कि मैं इस तरफ ना आऊँ, लिहाजा बेहतर यही है कि हम वापस चलते हैं। मेरी बात सुनकर वो मेरा मजाक बनाने लगी और कहने लगी, डरपोक डरपोक, तुम तो डर गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस कदर डरपोक हो सकती हो। मैंने उसकी बातों को किसी खातिर नहीं लाई और तेजी से घर वापस आ गई। मुझे फौरन घर आता देखकर अम्मी हैरान हो गई और मुझे कहने लगी, अरे तुम अपनी दोस्त के साथ नहीं गई थी? अम्मी की बात सुनकर मैंने बुरा सा मुंह बनाया और उन्हें कहा कि वो पागल हो गई है, अब उसका नाम मेरे सामने मत लीजिएगा, और तेजी से अपने कमरे में चली गई। लेकिन अब मेरा दिमाग दोबारा से अपनी दोस्त की बातों में अटका हुआ था। वो मुझे डरपोक कह रही थी, हालांकि ऐसा नहीं था, मैं किसी भी चीज़ से नहीं डरती थी। अब ये डरपोक लफ्ज़ किसी हथौड़े की तरह मेरे दिमाग पर लग रहा था। मैं बार बार बेचैनी से करवटें ले रही थी, लेकिन मुझे एक लम्हे के लिए भी चैन नसीब नहीं हो रहा था। और फिर ना चाहते हुए भी मैं उस बरगद के पेड़ के बारे में सोचने लगी, और फिर इसी तरह सोचते सोचते न जाने में कहाँ पर निकल गई। अब मुझे वाकई तजस्सुस होने लगा था कि ऐसा क्या है कि वहाँ पर औरत बैठे तो वो हामला हो जाती है, क्योंकि इस तरह की कहानियाँ मैंने सिर्फ किताबों में ही पढ़ी हुई थी या फिर टीवी ड्रामों में देखा हुआ था। मैं नहीं समझती थी कि हकीकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ है। और फिर मैंने फैसला किया कि मैं उस पेड़ के नीचे जाकर बैठूंगी, लेकिन इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर बाद में कोई मसला हो जाता है तो कोई भी मुझे इन सब का जिम्मेदार ना करार दे सके। लिहाजा मैंने अम्मी से छुपकर वहाँ पर जाने का फैसला किया। लेकिन अगले दिन जब मैं वहाँ पर पहुँची तो मेरी दोस्त पहले ही वहाँ पर मौजूद थी। अपनी दोस्त को वहाँ पर देखकर मैं हैरान रह गई और उससे कहने लगी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरी बात सुनकर वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराई और कहा कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। मुझे यकीन था कि तुम यहाँ पर ज़रूर आओगी। मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि जब तुम्हारे दिमाग में कोई चीज़ एक बार पड़ जाती है तो तुम उस वक्त तक उस चीज़ से नहीं हटती जब तक तुम आजमा कर ना देख लो। अब कि मैंने बुरा सा मुंह बनाया और कहा, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम बचपन से ही मेरे साथ किसी चुड़ैल की तरह चिमटी हुई हो। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी और कहने लगी, चलो अब नीचे बैठकर देखो, देखते हैं कि क्या होता है। मैंने उससे पूछा कि पहले तुम जाकर बैठो, तो मेरी बात सुनकर वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि मैं यहाँ पर बैठकर देख चुकी हूँ, कल ही मैं यहाँ पर बैठी थी।
लहٰज़ा किसी को भी उसके नीचे 2 बार बैठने की इजाज़त नहीं है। काम सिर्फ उसी वक्त होता है जब कोई एक बार बैठे। मैंने उसे कहा कि वैसे भी हम दोनों शादीशुदा नहीं हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हकीकत में ऐसा कुछ भी होगा। चलो एक बार बैठकर देख ही लेती हूँ। और फिर मैं उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। काफ़ी देर नीचे बैठने के बाद मैं उठ खड़ी हुई। मुझे कुछ भी अजीबो-गरीब महसूस नहीं हो रहा था। मैं तेज़ी से अपनी दोस्त के पास आई और कहने लगी, ये सब सिर्फ और सिर्फ झूठ है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं। मेरी बात सुनकर मेरी दोस्त दोबारा से मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अभी वक्त ही कितना गुजरा है, तुम अभी से अंदाजे लगाना शुरू हो गई हो। अभी रुको, देखते हैं कि आगे जाकर क्या होता है। मैंने दोबारा उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया और सोचा कि मैंने वैसे ही उसकी वजह से अपना इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया कर दिया है। मैं तेज़ी से घर की तरफ गई, क्योंकि आज अहमद ने मुझे कहा था कि वो दिन के वक्त मुझे कॉल करेगा और उसकी कॉल का टाइम भी हो गया था। घर जाकर मैंने उससे बात की और इतने सारे अरसे में पहली बार मेरी उसके साथ तफसील से बात हुई थी। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में आया कि मैं अहमद को बता दूं कि आज मैं बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो मुझे डांटेगा और परेशान हो जाएगा, लिहाजा मैंने उसे बताने का फैसला मुलतवी कर दिया। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने साथ कितनी बड़ी ज्यादती करने जा रही हूँ। और फिर इसी दौरान 2 महीने गुजर गए। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे बार बार उबकाई आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से मुझे क्या हो गया। उस दिन अचानक ही मेरी दोस्त घर में दाखिल हुई। मुझे इस हालत में देखकर वो परेशान हो गई और कहने लगी, क्या हो गया है, तुम ठीक तो हो? मैंने उसे कहा, पता नहीं क्यों मेरा बार बार दिल खराब हो रहा है। यकदम ही उसने मेरे वजूद पर से अपने हाथों को हटा लिया। मैंने उसकी तरफ हैरानगी से देखा और उससे पूछने लगी, क्या हो गया, तुम्हें कोई करंट लगा है जो इस तरह से बर्ताव कर रही हो? उसने मुझे कहा कि अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो। वो मुझे लेकर एक दाई के पास ले गई और फिर वहां जाकर मुझे जिस खबर के बारे में पता चला, वो सुनकर मुझे लगा कि 7वां आसमान मेरे सर पर आकर गिर गए हों। मैं हकीकत में हामला हो चुकी थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी और अपनी दोस्त को कहने लगी कि अब क्या होगा, अब मैं क्या करूं? उसने मुझे कहा, तुम फिक्र मत करो, आओ सबसे पहले तुम्हारी अम्मी को इस बारे में बताते हैं। जब हम घर में दाखिल हुए तो उस वक्त मेरी सास भी बैठी हुई थी और मेरी अम्मी से बात कर रही थी। मैं नहीं जानती थी ये मेरी दोस्त मेरी सास के सामने ही शुरू हो जाएगी। और फिर उसने मेरी सास के सामने ही मेरी अम्मी को बता दिया कि मैं बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी, इसी वजह से हामला हो गई हूँ। ये सुनकर सास अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और हम माँ बेटी को बातें सुनाने लगी और कहने लगी, मैं पहले ही कहती थी कि ये लड़की बहुत टेढ़ी है, इसको जब तक रोकोगे नहीं तब तक ये सुनेगी नहीं। अब देखो इसने क्या कर दिया, इसने भी एक गुल खिला दिया है। अरे इसको क्या ज़रूरत थी वहाँ पर जाने की? क्या ये शादीशुदा थी या इसकी शादी को एक लंबा अरसा गुजर चुका था जो ये औलाद की वजह से फिक्रमंद हो रही थी? और फिर मेरी सास ने मेरा रिश्ता तोड़ दिया। मुझे यूं लग रहा था कि मेरी दुनिया लुट गई हो। मैंने एक नज़र अपनी दोस्त पर डाली जो मुझसे माजरत करने लगी और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता ही नहीं चला, मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा क्योंकि मैं जानती थी कि उसने सब कुछ जानबूझ कर किया है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया इस बारे में मुझे इल्म नहीं था। मैं रोते हुए अम्मी के गले लग गई। अम्मी ने भी मुझे सहारा नहीं दिया और मुझे दूर करते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें समझाया करती थी कि कभी भी ऐसा काम मत करना कि जिसकी वजह से ना सिर्फ तुम खुद शर्मिंदा हो बल्कि मुझे भी जलील और रुस्वा कर दो। लेकिन तुमने मेरी कभी कोई बात नहीं सुनी और आज देख लो तुम्हारी इस हरकत की वजह से क्या हाल हो गया है। वो मुझे डांट रही थी कि मेरी दोस्त दोबारा से आ गई और मेरी अम्मी को कहने लगी, आप फिक्र मत करें, मेरे पास इसका इलाज है। दरअसल मैं एक मौलवी को जानती हूँ, वो एक बहुत ही नेक और अच्छा मौलवी है। मुझे यकीन है कि वो इस सिलसिले में हमारी मदद करेगा
और हमें बताएगा कि आखिर ये मसला क्या है। दोस्त की बात सुनकर मैंने उसे तेजी से कहा, मुझे अभी और इसी वक्त उस मौलवी के पास ले चलो। और फिर मैं, अम्मी और दोस्त के साथ उस मौलवी के पास चली गई। उसकी झोंपड़ी जंगल से थोड़े ही फासले पर बनी हुई थी। अंदर बहुत ज्यादा गंध और बदबू थी। पता ही नहीं चल रहा था कि ये कोई मौलवी है। यूं लग रहा था जैसे ये कोई बहुत ही बड़ा जादूगर है। मैंने एक नज़र अपनी अम्मी के चेहरे पर डाली जो मेरी तरफ ही देख रही थी। उनके जहन में वही सब कुछ चल रहा था जो कि मेरे जहन में चल रहा था। और फिर उस मौलवी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहने लगा, तुमने अपने साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है। तुम एक जिन के बच्चे को इस दुनिया में ला रही हो। तुम्हारी जिंदगी में अब बहुत सारी मुश्किलात आएंगी। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खौफजदा हो गई और उसे रोते हुए कहने लगी कि मेहरबानी करो, मुझे इस सब से निकालो और मेरी मदद करो। उसने मुझे कहा, तुम्हें चांद की 14वीं को मेरे पास आना होगा, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने एक नज़र अपनी अम्मी के चेहरे पर डाली जो बेबसी से मेरी तरफ देख रही थी। हम माँ बेटी के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लिहाजा मैंने उसे कहा, आप फिक्र मत करें, मैं चांद की 14वीं को आपके पास ज़रूर आऊँगी। और फिर दोबारा मैं अपनी अम्मी और दोस्त के साथ घर वापस आ गई। उस वक्त मैं बहुत बुरी तरह से उलझी हुई थी। बहुत अजीबो गरीब सोचें थी जो परेशान कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ मेरी दोस्त अब दोबारा से मुतमईन हो चुकी थी। और फिर घर जाते जाते उसने मुझे दोबारा तसल्ली दी और कहा कि फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे साथ कुछ भी अजीबो गरीब वाक़या पेश आता है तो मुझे उस बारे में ज़रूर बताना। मैं मौलवी को इस बारे में बताऊंगी और फिर वही जो तुम्हें इस सब से निकालेगा। मैंने तेज़ी से हाँ में सर हिलाया और फिर उस दिन के साथ मेरे साथ बहुत ही अजीबो गरीब वाक़यात पेश आने लगे। हमेशा मुझे यूं लगता जैसे कोई मुझे घूरे जा रहा हो। जब मैं पलट कर देखती तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता था। अब तो 6 महीने मुकम्मल होने को आ गए थे। अहमद की वापसी भी लाजमी ही थी। और फिर जब मैंने दिन गिने तो मुझे पता चला कि अहमद ने उसी दिन वापस आना था जिस दिन मैंने उस मौलवी के पास अपना इलाज करवाने जाना था। एक और बात थी जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। वो ये थी कि उस दिन के बाद मुझे अहमद की कोई कॉल नहीं आई थी। यकीनन उसकी माँ ने उसे इस बारे में सब कुछ बता दिया था। क्या उसने वाकई मुझे छोड़ दिया था? मैं अपने आप से सवाल किया और फिर दोबारा फूट फूट कर रोने लगी। मैं उस वक्त को पछता रही थी जब मैंने अपनी दोस्त की बात मानने का फैसला किया था। दूसरी तरफ एक और बात जो मुझे काट रही थी वो ये थी कि मेरी दोस्त क्यों नहीं हामला हुई। वो भी तो उसी दरख्त के नीचे बैठी थी। उसके पीछे भी अब मुझे यही लग रहा था कि शायद उसने मुझसे झूठ बोला है। वो उस पेड़ के नीचे बैठी ही नहीं। खैर जो कुछ भी था, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही गई थी। और फिर उस दिन मैंने बहुत अजीबो गरीब ख्वाब देखा। मैं देखती हूँ कि मैं एक कमरे में अकेली बैठी हुई हूँ। वो कमरा चारों तरफ से बंद है, लेकिन फिर अचानक ही उस कमरे में खुद ब खुद एक दरवाज़ा बनने लगता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है, एक औरत कमरे के अंदर दाखिल होती है और वो मुझे कहती है कि मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दो, मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दो। मैं उसे कहती हूँ कि मेरे पास कोई भी बच्चा नहीं। तो वो मेरे पेट पर हाथ रखती है और कहती है, तुम बरगद के पेड़ के नीचे आई थी और तब मैंने अपना बच्चा तुम्हारे पेट में रख दिया था। अब मुझे जल्दी से वो दे दो, मैंने उसे लेकर वापस जाना है। अचानक ही मेरी आंख खुल गई। मैं उस वक्त पूरी की पूरी पसीने में शराबोर थी। मैं दोबारा फूट फूट कर रोने लगी और सोचने लगी कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। फिर मैंने फैसला किया कि उन औरतों के पास जाती हूँ जो इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ चुकी हैं और जो इस वजह से हामला हो गई हैं। लेकिन फिर मैं जितनी भी औरतों के पास गई, उनसे मुझे यही पता चला कि पेड़ के नीचे बैठने वाली सिर्फ और सिर्फ एक कहानी ही है। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे दिल में आया कि मैं उन्हें अपनी हालत के बारे में बता दूं, लेकिन फिर मैं खामोश हो गई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि यूं पूरे गांव वालों को मेरे बारे में पता चले। अभी मेरे बारे में सिर्फ मेरे घर वालों को और मेरे ससुराल वालों को ही पता था।
अब तो अपने घर में मैं एक अजीब व गरीब औरत को भी देखने लगी थी, जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये सब सच है। और फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मैंने उस मौलवी के पास जाना था। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। दिन के वक्त मैं उसी के बारे में सोच रही थी जब अचानक मेरे कानों में अहमद की आवाज़ पड़ी। चूँकि उसका घर मेरे घर के करीब ही था, इसी वजह से वहाँ से आवाज़ें साफ साफ सुनाई देती थीं। इतने अरसे बाद अहमद की आवाज़ सुनकर मेरे दिल को खुशी हुई, लेकिन फिर मैं दोबारा से उदास हो गई, क्योंकि अब मैं ना तो उससे मिल सकती थी और ना ही पहले की तरह उससे बात कर सकती थी। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरी ही वजह से हुआ था। और फिर थोड़ी ही देर बाद वहाँ से बाकी लोगों की भी हंसने की आवाज़ें आने लगीं। सारे लोग बहुत खुश लग रहे थे। अब मुझे अपनी दोस्त की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी जो उन्हीं के घर पर बैठी हुई थी। और फिर मैं वहाँ से उठ गई, क्योंकि मज़ीद ये सब बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं थी। रात के वक्त मैंने काली चादर ओढ़ी और अम्मा से इजाज़त लेकर दोबारा उस जंगल की तरफ चल दी। जैसे ही मैं झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई, सामने ही वो मौलवी बैठा हुआ था। उसने उस वक्त एक काला चोगा पहन रखा था, जबकि उसकी आंखें लाल थीं। मुझे देखा वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मेरे करीब आकर बैठो। उसकी आंखें उस वक्त लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर अजीब व गरीब असरात थे। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैं उसके करीब तो बैठ गई, लेकिन इससे पहले कि वो मेरे साथ कुछ गलत करता, अचानक अहमद वहाँ पर आ गया और उस मौलवी को पकड़कर मारने लगा। तब मुझे ये पता चला कि वो मौलवी एक जादूगर था और मुझ पर काला जादू कर रहा था, और मेरी तरफ भेजने वाले तमाम जिन्नात उसी जादूगर की वजह से आए थे। और ये सब कुछ उसके हाथों मेरी दोस्त करवा रही थी, क्योंकि वो अहमद को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन जब अहमद मेरा रिश्ता लेकर आया तो वो मुझसे खींची खींची रहने लगी, और फिर उसने मुझसे बदला लेने का फ़ैसला किया, और इस सिलसिले में उसने जादू की मदद लेना चाही। लेकिन अब सारी हकीकत सामने आ चुकी थी। अहमद ने तेज़ी से वहाँ से मेरी सारी तस्वीरें और मेरे बाल उठाए, जो कि मेरी दोस्त ने ही उस जादूगर को पहुँचाए थे, और मुझे लेकर वापस आ गया। उस दिन उसने मुझे बहुत डांटा और मुझे कहा, क्या तुम पागल हो गई हो या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है जो यहाँ पर चली आई थी? अगर मैं यहाँ पर ना आता तो सोचता हूँ तुम्हारे साथ क्या होता। और यूं उस पीर की कहानी भी सबके सामने आ गई। मेरी सास ने दोबारा से मुझे माफ़ कर दिया था और मुझे कबूल कर लिया था। उस दिन के बाद मैंने फ़ैसला किया कि कभी भी किसी ऐसे काम में मुलविस नहीं होंगी, और ना ही तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालूंगी, क्योंकि इन कामों में हाथ डालने का फ़ायदा ही नहीं है, जिन कामों में सिर्फ़ और सिर्फ बदनामी हो। कुछ ही अरसे बाद मेरी अहमद से शादी हो गई, लेकिन आज भी जब मुझे उन जिन्नात और उन अजीब व गरीब चीज़ों के बारे में याद आती है तो मेरा पूरा जिस्म खौफ से कांप जाता है। मैं सोचती हूँ कि अगर अहमद वहाँ पर ना होता तो मेरे साथ क्या होता। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।